Hello students, today we are going to discuss about the conduction of nerve impulse, that is conducting nerve impulse which are conducting the neuron is depending upon which factors कि किसके ऊपर ये depend करता है conduction, and this we will discuss by the use of one formula in the physics because the nerve impulse is just a type of electricity only, and that is electric current, the flow of electric current. So that's why we will use one physics formula, and from that only we will discuss on which factor does the conduction of nerve impulse depend upon. So this would be most interesting topic in this video. So watch this video till the end and just learn and understand the concept what I am telling you here. So welcome to our channel Concise Concept. So let's start. So before seeing this topic, that the factor that depending upon the conduction of nerve impulse depend upon, we'll see two facts कि जो nerve impulse conduct होता है in the neuron, that is if this is a neuron, think this is a neuron and this is a axon part, this is a dendrite part, this is nucleus, and this is axon part, and think this is a type of neuron. When signal would come here and will flow from the dendrite to the axon terminal, but here question arises कि इसका speed कितना है, ये जो flow कर रहा है, ये जो impulse, the action potential which is flowing, that is moving from action potential, that is the impulse which is flowing from which is moving from this dendrite terminal to the axon terminal, ये इसका speed कितना है. तो speed है of the impulse in a neuron is approximately 120 meter per second. कि 120 मीटर एक सेकंड में 120 मीटर चला जाता है. सो स्पीड ऑफ द इम्पल्स इन द न्यूरॉन इज 120 मीटर. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कि कितना नंबर ऑफ इम्पल्स जाता है इन 1 सेकेंड, कि एक सेकंड में कितना इम्पल्स ट्रैवल करता है इन अ न्यूरॉन हाउ मेनी इम्पल्स वुड ट्रैवल. तो दैट इज नंबर ऑफ इम्पल्स इज 1000 इम्पल्स ट्रैवल कर जाता है एक सेकंड में. अप्रॉक्सीमेटली 1000 in 1 second 1000 इम्पल्स को ट्रैवल इन अ न्यूरॉन. सो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि ये जो ट्रैवल कर रहा है या फिर ये जो स्पीड है किसके ऊपर डिपेंड करता है, द नंबर ऑफ इम्पल्स ये किसके ऊपर डिपेंड करता है. सो द डिपेंडिंग फैक्टर कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो हम देखेंगे. सो ये जो इम्पल्स है ये जस्ट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द वायर इन विच, अगर ये वायर है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इसी के जैसा न्यूरॉन में भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स, दैट इज इम्पल्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो भी फ्लो हो रहा है. तो ये क्योंकि इन फिजिक्स वी हैव स्टडीड दैट इज वन फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई A. तो यहाँ हम देखेंगे ये तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज रेजिस्टेंस. अब ये रेजिस्टेंस क्या है, जस्ट सी रेजिस्टेंस क्या है. रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है इट इज द एबिलिटी to resist the flow of current, and in case of neuron to resist the flow of impulse. Simple. So resistance क्या होता है, करंट को रोकने का जो क्षमता होता है, दैट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. करंट को रोकने का जो क्षमता होता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, द एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज एरिया, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, एंड दिस इज रेजिस्टिविटी. सो इन 3 फैक्टर्स इट डिपेंड्स, दैट इज फर्स्ट इज रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट इज लेंथ, एंड नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया. So in these 3 factors, but this resistivity we will see, because this resistivity is an internal property, that is it depends on the internal property of the material of the wire basically. तो so ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, on various other factors are there, but we will see about the length and cross section area. So first we will see कि अगर ये रेजिस्टेंस जो है वो कम या ज़्यादा होगा तो करंट में क्या असर पड़ेगा. सो जस्ट सी हियर, अगर रेजिस्टेंस for resistance we'll write R only.
सो रेजिस्टेंस, इफ रेजिस्टेंस इज मोर, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा या कम होगा, तो करंट वुड भी, क्योंकि करंट को रोकने का जो क्षमता है वही ज़्यादा है, तो करंट फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, तो वो कम होगा, करंट वुड बी लेस। नेक्स्ट केस, अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है, इन द सेंस रेजिस्टेंस इज लेस, देन करंट क्या होगा, देन करंट फ्लो, द फ्लो ऑफ करंट वुड बी, दैट वुड बी ग्रेटर, करंट ज़्यादा होगा, द फ्लो ऑफ करंट इन दैट वायर वुड बी ग्रेटर। This arrow shows it is more and this is less. Okay, so you will just understand it. So यहाँ पे हम देखेंगे लेंथ अगर इंक्रीज होता है या क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होता है तो क्या असर पड़ता है। जस्ट सी हियर, अगर लेंथ हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ इफ आई एम इंक्रीजिंग, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ इज मोर, देन व्हाट हैपन, लेंथ इज मोर बिकॉज लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो लेंथ बढ़ेगा, तो क्योंकि बिकॉज द न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग देन दिस विल ऑल्सो इंक्रीज, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ इज मोर देन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो मोर, एंड व्हेन रेजिस्टेंस इज मोर, आई हैव टोल्ड व्हेन रेजिस्टेंस इज मोर देन करंट फ्लो वुड बी, क्योंकि रोकने का क्षमता है वही ज़्यादा है, देन करंट फ्लो वुड बी लेस, और करंट फ्लो अगर लेस है तो इम्पल्स, that is impulse carrying in the neuron would be also less, तो impulse भी यहाँ कम फ्लो करेगा, would be less, क्योंकि करंट फ्लो कम पड़ रहा है। इसका मतलब more the length of the neuron less the impulse would flow, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना कम impulse, that is the speed of the impulse would be less, तो speed of the impulse less होगा। नेक्स्ट, अगर लेंथ कम होगा, ये तो मोर का हो गया, अगर लेंथ लेस होगा, अगर लेंथ इज लेस, इट मीन्स अगर लेंथ कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस वुड बी लेस, और रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब क्या है, दैट इज करंट को रोकने का जो क्षमता है वो कम है, अगर करंट को रोकने का क्षमता है तो कम है, तो करंट क्या होगा, फ्लो, द स्पीड ऑफ द करंट वुड बी मोर, और करंट का स्पीड ज़्यादा है इसका मतलब इम्पल्स भी ज़्यादा है, इसका मतलब लेस द लेंथ, लेंथ जितना कम होगा न्यूरॉन का, दैट इज न्यूरॉन का लेंथ जितना कम होगा इम्पल्स उतना स्पीड में फ्लो करेगा। एंड दिस वी हैव सीन अबाउट दी, दिस टू वी हैव सीन अबाउट दी लेंथ, लेंथ के बेसिस पे हम समझे, अब हम समझेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया के बेसिस पे। अब क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर आते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो अगर मोर होगा, दैट इज इट विल बी मोर, अगर ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो वी आर सीइंग दैट क्रॉस सेक्शन एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज यू कैन सी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या समझते हैं कि अगर ये दैट इज मोर, if cross section area is more, if cross section area is more then resistance would decrease, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मोर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट फ्लो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो क्या होगा, क्योंकि करंट को रोकने का क्षमता है वही कम है, तो करंट क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा, करंट वुड बी फ्लो मोर, और करंट क्योंकि ज़्यादा फ्लो कर रहा है इसका मतलब इम्पल्स भी ज़्यादा फ्लो करेगा, इम्पल्स वुड बी मोर, स्पीड ऑफ द इम्पल्स वुड बी मोर। सो क्रॉस, हम क्या सीखे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द न्यूरॉन वुड बी मोर, इसका मतलब इम्पल्स वुड ऑल्सो फ्लो मोर एंड मोर, स्पीड उसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन एरिया अगर लेस होगा तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर लेस होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस वुड बी मोर। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रोकने की क्षमता ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा, क्योंकि करंट को रोकने की क्षमता ही है, दैट इज एबिलिटी इज मोर, करंट रेजिस्टेंस मोर है तो करंट क्या होगा, कम होगा, और करंट कम फ्लो करेगा तो इम्पल्स भी तो कम फ्लो करेगा इन द न्यूरॉन। तो यहाँ से हम फिजिक्स का एक फॉर्मूला से समझ सकते हैं, दैट इज वी कैन अंडरस्टैंड बाय द यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली कि करंट क्या, दैट इज इम्पल्स, हाउ द इम्पल्स वुड फ्लो इन अ न्यूरॉन, उसका स्पीड कैसा होगा, तो दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड दिस we can understand by using this formula, that is R is equal to rho L by A, that we have studied in physics. So now we will see one question that I am giving you. So one question we will write here. So now we will see one question. See here, on the basis of length,
if this is a neuron, I am just drawing a axon part, because the action, that is impulse, has been received by the dendrite and it is now flowing in the axon, now flowing in the axon. तो axon के basis पे हम समझेंगे, that is length, this is axon A and this is axon B. Now next is on the basis of cross sectional area, cross sectional area. तो यहाँ पे this is axon B, this is cross sectional area 1, that is A, and this is cross sectional area B. अब किस में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और किस में कम करेगा? सी हियर, लेंथ, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, किस में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा? तो ऑफ कोर्स बिकॉज द लेंथ इज लेस, लेंथ कम है इसका मतलब रेजिस्टेंस भी कम है, रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, दैट इज इम्पल्स वुड फ्लो, स्पीड ऑफ द इम्पल्स इज मोर. तो यहाँ पे इम्पल्स स्पीड में फ्लो करेगा इन कंपैरिजन टू द दिस, इसमें नहीं फ्लो करेगा. नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, किस में स्पीड में फ्लो करेगा? क्योंकि एरिया यहाँ कम है और एरिया यहाँ ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ कम ज़्यादा है. दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज कॉल्ड, दिस एरिया इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया. तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम है इन कंपैरिजन टू द बी एक्सॉन. तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्योंकि कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा. सो यहाँ पे नहीं फ्लो करेगा स्पीड में, दैट इज स्पीड में फ्लो नहीं कर पाएगा और यहाँ पे स्पीड में फ्लो करेगा. So we have seen just how the conduction of impulse depend upon which factors and by using the formula of physics. So R is equal to rho L by A. So I hope you have understood this concept. So if you like the video, please subscribe the channel and hit the bell icon to get all the notification from this channel. Thank you.